Hello students, welcome to Future Scholars. Today we are going to study new chapter Understanding Motion, Physics class 9th. What is motion? So motion is change in an object position over time relative to a reference frame. Now, first of all, what is reference frame? If you are standing beside a tree and you are measuring your distance with respect to tree, then tree will be your reference frame. अगर आप ट्री के रिस्पेक्ट में अपना डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं कि मैं ट्री से 2 किलोमीटर चलाऊं तो ट्री जो है वो आपका रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा. सो वही अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे मोशन. इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक पैसेंजर एक मूविंग ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो अगर मैं मूविंग ट्रेन को उसके प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पैसेंजर को ऑब्जर्व करूँ तो पैसेंजर जो है वो मोशन में है. लेकिन अगर मैं उस पैसेंजर को बाकी के पैसेंजर जो ट्रेन में बैठे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो वो रेस्ट पर है. सो दैट इज़ योर मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर 3 टाइप्स: ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड पीरियोडिक. ट्रांसलेटरी क्या होगा कि अगर मूवमेंट हो रही है अलोंग अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, दैट इज़ योर ट्रांसलेटरी मोशन. इसका एग्जाम्पल है लाइक बस ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, दैट इज़ ट्रांसलेटरी. रोटेशनल अगर मैं बात करूँ कि रोटेशनल अगर मोशन हो रहा है अराउंड अ फिक्स एक्सिस, दैट इज़ योर रोटेशनल मोशन. इसका एग्जांपल है कि स्पिनिंग टॉप और या फिर रोटेटिंग फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो. पीरियोडिक मोशन का एक सिंपल एग्जांपल आपने देखा है कि स्विंगिंग पेंडुलम और ट्यूनिंग फॉर्क्स. तो पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है जो कि रिपीट होता है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो दैट इज़ योर पीरियोडिक मोशन. Now we will study distance versus displacement. What is distance? Distance is the total path length traveled by an object. That is your distance. And what is displacement? The shortest path या फिर the minimum path between the initial or the final position, that is your displacement. Now there are two quantities which you will study: scalar quantity or vector quantity. What is scalar quantity? Scalar quantity is that only measure the magnitude. Magnitude is the value. And what is vector? Which measure both magnitude and the direction, that is your vector quantity. So distance is your scalar because it only measure magnitude, and displacement is your vector quantity because it measure magnitude and direction. Here is the figure given that distance is the total path or the longest path and displacement is the shortest path. Next, speed and velocity. So speed is distance traveled by per unit time. Simple formula which we study in the junior classes is speed equal to distance upon time, and speed is a scalar quantity. Velocity की बात करें तो velocity is displacement per unit time. Displacement क्या था? Change in position, that is final minus initial position, and it is your vector quantity. Next, uniform and non-uniform motion. Uniform motion is an object travel equal distance in equal time interval, that is your uniform motion. But there is one condition कि uniform motion के अंदर जो velocity होती है वो कैसी होती है? constant होती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट इज़ योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन. The rate of change of velocity over time is known as acceleration. Next, average speed and average velocity. Average speed निकालने का फॉर्मूला है total distance traveled per unit time, and average velocity निकालने का फॉर्मूला है change in position upon time travel, and change in position is your displacement, यानी कि final minus initial, that is your displacement. So ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है कि सारंग जो है उसको 50 सेकेंड लगते हैं स्विम करने में फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल, एंड फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स. और जो पूल की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 25 मीटर. बट वो कह रहा है कि उसको 50 सेकेंड लग रहे हैं जब वो इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाता है और फिर वापस आता है. तो वापस आने में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो अब आपका 50 मीटर हो जाएगा. यानी 50 सेकंड के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसने वो 50 मीटर किया है. बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा
क्यों? क्योंकि जो उसकी इनिशियल और जो उसकी फाइनल पोजीशन थी वो सेम थी। तो अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस था हमारा 50 और टाइम था हमारा 50, तो 1 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो होता डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गई? 0 आ गई। नेक्स्ट है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम ट्रेवल। यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखा रखा है। फाइनल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम इज t2 माइनस t1। इसकी जो SI यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की SI यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड की SI यूनिट भी क्या थी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको NCERT में दे रखा है कि एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। देखो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपकी कार जो है वो स्पीड अप हो जाएगी और आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहीं अगर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी कार जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक बस जो है वो मूव कर रही है अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे जिसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ड्राइवर जो है वो प्रेस करता है एक्सेलरेटर फॉर टाइम ट्रेवल ऑफ 10 सेकेंड एंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है फॉर 54 किलोमीटर पर आवर। फॉर सम टाइम जो बस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। देन ड्राइवर नोटिस करता है कि कोई एक ऑब्स्टेकल आ गया है और फिर वो ब्रेक प्रेस कर देता है। अब बस जो है वो स्टॉप हो जाती है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है 2 टाइम इंटरवल के अंदर। पहला कि जब उसने एक्सेलरेशन दबाया, एक्सेलरेट किया, और सेकेंड वन दैट कि जब उसने ब्रेक को प्रेस किया। तो देखो, किलोमीटर पर आवर के अंदर हमें वेलोसिटीज़ दे रखी हैं। अब उसकी SI यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है दैट इज़ अ मीटर पर सेकेंड। तो हम इस किलोमीटर पर आवर को किससे डिवाइड कर देते हैं? 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, और जो आपका 54 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है वो आपका 15 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अब इनिशियली वेलोसिटी हमें 36 दे रखी थी और फाइनली हमें 54 दे रखी थी, तो यहाँ से हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। 15 माइनस 10 और टाइम दे रखा था 10 सेकेंड, तो हमारा एक्सेलरेटेड जो अपना एवरेज एक्सेलरेशन है वो आया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंडली उसने पूछा था कि हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताओ जब उसने ब्रेक को प्रेस किया। देखो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 36 थी और फाइनली जो थी उसकी 54 किलोमीटर थी। अब वो कांस्टेंट 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा था, लेकिन तब उसने फिर फाइनली ब्रेक लगाए, तो जब उसने ब्रेक लगाए तब उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 54, जिससे वो आ रहा था। तो यहाँ पर जब हमने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया तो हमारी जो एवरेज एक्सेलरेशन आई वो आई नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आई? नेगेटिव आने का मतलब हमें यही पता लगा कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तभी तो ब्रेक लगेगा, तभी तो वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो बस स्टॉप करेगी। तो यहाँ पर साइन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकेंड इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है आपका स्लोप और एक है आपका एरिया। स्लोप कब बताएगा और एरिया कब बताएगा ये आपको याद रखना है। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप आपको क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। लेकिन अगर आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। जैसे ये 2 एग्जांपल आपको NCERT में दे रखे हैं। पहला अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमें दे रखा है पोजीशन वर्सेस टाइम। यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ इस तरीके से बना रखा है जो कि किस पे है? 40 मीटर पे है। यहाँ पर एक क्या बता रहा है? पोजीशन और टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? पोजीशन और टाइम ग्राफ हमें बताता है स्पीड।
तो स्पीड जो है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड से क्या है, कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं कर रही, इस वजह से यहाँ पर लीनियर लाइन खींची है। सेकेंड आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको ए और एक दे रखा है आपको बी। हमने पढ़ा है कि जो पोजीशन और टाइम का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बी वाला है इसका जो स्लोप है वो स्टीपर है एज कंपेयर टू ए। यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है कि जो स्लोप है ऑफ लाइन बी स्टीपर देन स्लोप ऑफ लाइन ए। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर देन वेलोसिटी ऑफ ए। नेक्स्ट आपको दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक लीनियर लाइन इस तरीके से खींची हुई है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, जो कि कितनी है, 20। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखा तो इस तरीके से हमारी लाइन क्लिक बना रखी है। यहाँ पर बता रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और ये लीनियर है और कांस्टेंट है, और साथ ही साथ ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। यहाँ पर सेम बात है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग स्लोप है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ योर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी लगती है जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है। तो 3 हमारी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखते हैं कि ये आई कहाँ से है। देखो हमने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस यू अपॉन में टी। अब मैं इस t को यहाँ साइड में ले गई, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और u को मैं इधर ले गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी पहली इक्वेशन आ जाती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला जो है उसके अंदर हमें चाहिए पोजीशन, तो वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया था वो हमें क्या दे रहा था, पोजीशन दे रहा था। तो यहाँ से ये हमारा स्लोप बना है, तो ये वाला जो एरिया होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमें क्या देगा, पोजीशन देगा। तो पोजीशन कौन सा एरिया वाला एरिया देगा हमें, ए ओ डी और बी। तो एरिया ऑफ ओ ए बी डी हमें क्या देगा, पोजीशन देगा। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही है, एक बन रहा है हमारा ट्रायंगल और एक बन रहा है अपना रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए ओ इंटू डी ओ। तो ए ओ यहाँ पर क्या है, ए ओ है अपना यहाँ पर यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि ये वाला तो अपना ओरिजिन हो गया, यानी ये क्या हो गया, अपना पॉइंट 0 हो गया, तो 0 से u तक का। और डी ओ यहाँ पर क्या है, अपना टाइम, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, c और a, c है यहाँ पर क्या है, टाइम, और b एंड c जो कि यहाँ पर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v से लेकर u तक का डिस्टेंस, तो v माइनस u, दैट इज योर bc। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन में हमने सेम ये जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन ली थी हमने, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, सेम ली है, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर टाइम को लिखा है। ये वाला जो टाइम है ये वैल्यू हमने क्या कर दी, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन थर्ड बन के आ गई, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बट कंडीशन यही है कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये तीनों इक्वेशन लगेगी, वरना नहीं लगेगी। देखो एक एनसीईआरटी के अंदर आपको एग्जाम्पल दिया है, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप इफ कार वॉज मूविंग विद वेलोसिटी इतना एंड इतना। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ने बिफोर कमिंग टू स्टॉप, यानी स्टॉप हो रही है, रुक रही है यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0।
इनिशियल वेलोसिटी हमें 2 दे रखी है, एक है 54 और एक है 108। अब देखो यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, वहाँ पर टाइम है, लेकिन टाइम हमें नहीं दे रखा तो हम वो नहीं लगाएंगे। सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर भी टाइम है, तो टाइम हमें नहीं गिवन है तो हम सेकंड भी नहीं लगा सकते। थर्ड वाली जो कि अपनी v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम s की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर दोनों वेलोसिटी पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में आप इसको ज़रूर कन्वर्ट करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द SI यूनिट्स। नाउ योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज करेगी, बट जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करेगा। लाइक अगर ये आपका सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अगर इस वाली पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? यहाँ पर। अगर वो यहाँ पहुँचा है तो इधर होएगी, अगर वो यहाँ पर है तो इधर की तरफ, और अगर वो इधर है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो ये उसकी वेलोसिटी होगी। हर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल क्या होगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर। सो डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती है और जो एक्सेलरेशन है वो आपका कहाँ होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और ये कॉन्स्टेंट होता है। रिमेंबर कि वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। लास्ट, एवरेज स्पीड जो है सर्कुलर मोशन के अंदर निकालने का फॉर्मूला सेम है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर उसके सर्कमफेरेंस के बराबर ही हो जाएगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो 2πr अपना टोटल डिस्टेंस हो गया और डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इन द सर्कुलर मोशन। लास्ट इज योर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन कब होता है? जब हमारा मोशन कहाँ हो रहा हो? 2 डायमेंशन के अंदर हो रहा हो। जैसे कि अगर एक व्हीकल जो है वो ओवरटेक कर रहा है अनदर, या फिर एक पाथ ऑफ अ किक्ड बॉल, या फिर एक सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये वाले मोशन क्या हो जाएंगे? मोशन इन प्लेन। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊँ तो ये जो बॉल है इसकी 2 वेलोसिटीज़ आएंगी। एक आती है एक्स एक्सिस के अंदर और यहाँ से एक आती है वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, दोनों का नेट निकल के आता है तब जाके ये इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो 2 डायमेंशन के अंदर मोशन हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? मोशन इन प्लेन बोल देते हैं। So that's all for today. Thank you so much for watching. If you have any doubt, please comment below. Thank you so much for watching.